Today, just we are going to start our first topics of OSP. It's related to the Olympiad. Okay. The same topics, the lights and reflection and refractions. It's very simple topic today. I will discuss what you have to learn today. We'll just go in brief. The angle of deviation. You know what is the angle of deviation? पता है आपको क्या है angle of deviation? Angle of deviation delta. क्या है बोलिए? Delta equals to 180 minus 2i or 180 minus 2r. ये क्या है तुम्हारा एंगल ऑफ, क्या होगा रे? इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट्स, हाइट एंड पोजीशन ऑफ मिरर, व्यू फुल हाइट. तो फुल हाइट आपको पूरी हाइट देखने के लिए इमेज की हाइट कितनी लेंगी? हाइट ऑफ द मिरर इज रिक्वायर्ड हाफ. कितना है? h बाय, एंड इट इज इररिलेवेंट ऑफ द पोजीशन. पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है उसको. हाइट कितनी होगी मिरर की? ये हाइट तुम्हारी h होंगी, तो मिरर की हाइट तुम्हारी उसकी हाफ आना चाहिए. ओके. द रोटेशन ऑफ द प्लेन मिरर. तो रोटेशन किस एंगल से रोटेशन होता है? सपोज रोटेशन इज थीटा, वी कैन फाइंड द चेंजेस इन दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ट्वाइस ऑफ द थीटा, है ना. तो ये क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में सपोज प्लेन मिरर का हमारा एंगल चेंज होता है, उसमें जो चेंजेस आएंगे वो देखना है. वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ द प्लेन मिरर, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी इज द सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन. वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगा उसका? अपोजिट. तो ये पता है, पॉइंट्स पता है आपको, वही पॉइंट्स आपको रिवाइज करना है. यहाँ पे बहुत सिंपल है. Multiple images, if the objects between the two mirrors are there, is like this the photo. If you are finding the image, how much image we are able to find, that is related with that number of image n 360 by theta minus 1. With the help of this formula we are able to find the number of images. Number of images formation, how the images are going to form. Sometimes the symmetric as well as asymmetric images is formed depending upon the angle, is even or odd. The combination of the mirror, how the mirrors are combinations, the two mirrors, 3 mirrors, 4 mirrors, many types of mirrors where the combining and we are finding the different kinds of the image. That one we have to then combination of suppose 2 mirrors, the parallel, okay, the perpendicular mirrors are there, parallel mirrors are there, or more than 2 mirrors are also there. That can also combination we have to find where the image will be formed. Like periscope is there, okay, periscope we are finding the image, how it will be the object, okay, like this. Miss the different conditions are there where we are finding the combinations, how we are getting the image, we will find in that topics. Now the very first question, some explanation about the angle of deviation in the plane mirror. That is the angle of deviation. This is known as the angle of deviation. This is the angle of incidence and this is the angle of, both are same, I equals to r. That's why just we are indicating the theta. Then how we are writing the angle of deviation is 180 minus 2 theta or 2i minus 2r also we can write. Is it clear? Now here we are going to start the first question now here. For that purpose you should know the basic geometry of geometrical mass. What is the property of triangle? The interior angle of triangle is equals to 180. Suppose this is triangle A, B, C. The angle A plus angle B plus angle C equals to that property. Just you should know about that. That properties we required, and basic properties you know that about angle of I equals to angle of R. That remaining you know very well. अभी उसमें से देखेंगे अपने क्वेश्चन. The question is given. A plane mirror is making an angle of 30 degrees within the horizons. That is यहाँ पे horizon से बताया angle. Ray strikes the mirrors vertically as shown in the figures. Find the angle of the deviation. क्या निकालना है आपको? डेल्टा ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम दैट इंसिडेंट रेज. तो यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं आप, तो ये एंगल कितना हो गया फिर आपको? ये 90 डिग्री हो गया. ये एंगल कितना है फिर आपका? ये 60 डिग्री, ये 90, ये कितना हो गया? ये पूरा मिलके क्या होगा? 120, है ना. तो ये एंगल तुम्हारा ये पूरा स्ट्रेट 120 है, तो ये एंगल सेम होता है. आई और आर क्या होता है तुम्हारा? सेम होता है ना. तो ये सपोज अपन कंसिडर करेंगे आई आर प्लस ये वाई, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 120. तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 60. ये 30 और 30, ऐसे 30 समझ में आ गया? हाँ. अभी हर बार यहाँ पे फिगर में दिया है आपको, हर बार नहीं देंगे.
यहाँ से जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे आता है। समझ में कैसा है? 30 डिग्री है। तो आपको कितना निकालना है? एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। डेविएशन का फॉर्मूला क्या पता है आपको? डेविएशन इक्वल्स टू 180 माइनस 2i, बोलो या तो r बोलो। तो 180 माइनस 60 तो कितना आएगा? 120। तो यहाँ पे दिखा है 120 क्लॉकवाइज, 120 काउंटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ तुम्हारा? इस तरह से जा रहा है एंगल, बराबर है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे जा रहा है ना। तो ये क्लॉकवाइज यानी इस तरह से, काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी के उल्टा। घड़ी के उल्टा जा रहा है क्या? नहीं। तो आंसर क्या आएगा अपना? क्लॉकवाइज 120 डिग्री। कौन सा बेटा? हाँ, ये नहीं समझा, चलो वेरी गुड। तो ये क्या है? मिरर है आपका, है ना। तो मिरर में क्या था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो ये यहाँ पे ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज पता है आपको। यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर डाला उन्होंने। ये कितना हो गया? 90। ये कितना है? 30। तो ये एंगल कितना हो गया? तो ये कितना है? लीनियर पेयर है ये। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया आपका? 120 में। 120 में दो एंगल सेम है आपके। कौन से? ये आया और आए, है ना। तो ये आया और आए प्लस सपोज ये कुछ भी दूसरा है, इसमें लिखता हो, उसको बी लिखता हो, इक्वल टू कितना हो गया? 2i प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 120, है ना। तो तो 2i इक्वल टू कितना हो गया? देखो अब ये 2i प्लस बी इक्वल टू, ये पूरा हो गया तुम्हारा 120 का एंगल हो गया, है ना। तो फिर यहाँ पे अपने को ओके, और इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ और भी बता सकते इसको। तो 90 डिग्री है। एक मिनट, ऐसे 30 निकलता बताता आपको। हाँ, आई की वैल्यू, हाँ नहीं, आई की वैल्यू यहाँ से निकाले अपन। ये 30 है तो इसलिए ये भी यहाँ पे 30 आया, है ना। ये भी 30 आया, तो यहाँ से ये 30 आ गया, तो इसलिए ये 30 है, इसलिए ये भी 30 आ गया, है ना। तो ये कितना हो गया तुम्हारा? ये 60, है ना। इस तरह से अपन निकाल सकते वैल्यूज यहाँ पर। समझ में आ गया नहीं? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर देखिए, निकालो एंगल। A ray of light is reflected by the two plane mirrors mutually right angles to the each others. नहीं, what is the deviations of reflected rays from the incident rays? कैसा निकाल, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। क्वेश्चन समझ में आपको? देखिए क्या बोल रहे हो? द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय टू प्लेन मिरर्स म्यूचुअली राइट एंगल्स। तो एक मिरर ऐसा है और एक मिरर ऐसा है। तो क्या निकालना है आपको? एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे क्या बोलता है देखो, द मिरर एट राइट एंगल टू ईच अदर्स, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द इंसिडेंट रे ऑफ। तो एक मिरर का इंसिडेंट रे ये है और दूसरे मिरर का रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये इधर जा रहा है और ये, तो एंगल कितना होगा दोनों का? 180। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट देखिए अब इसमें, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर, a ray of light strikes the plane of an angle 15 degree with the mirrors, and what is the angle of thrown the which the ray gets deviated, and the angle of deviation निकालना है। निकाल सकते हैं। ये क्या दिया आपको? ग्लांसिंग एंगल दिया है ना। मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो क्या होगा तुम्हारे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया आपका? 75, है ना। तो आपको पता है एंगल ऑफ डेविएशन क्या निकालोगे आप? डेविएशन इक्वल्स टू 180 माइनस 2r निकालो, या तो 2r निकालो, कुछ भी निकालो। तो 180 माइनस 2 इंटू 75, दैट इज 180 माइनस, यानी कितना आएगा एंगल ऑफ डेविएशन? 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? कौन सा बेटा? ये क्या? हाँ देखिए, इसमें क्या बताया? द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय टू प्लेन मिरर्स म्यूचुअली राइट एंगल्स। ये दो मिरर क्या है तुम्हारा? राइट एंगल है। टू ईच अदर्स, व्हाट इज द डेविएशन? डेविएशन क्या होता है? हमेशा एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड, ये जाने वाली रे कौन सी है तुम्हारी? ये एंगल तुम्हारे ऐसा जा रहा है, और आने वाली रे कौन सी है? ऐसी है। दोनों में एंगल कितना हो गया? अपोजिट जा रहे हैं ना, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो दोनों में एंगल कितना बन गया? 180, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन ही बता रहा ना। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड। ये इंसिडेंट जाने वाली ये है, और ये जाने वाली, और ये आने वाली। यहाँ पे देखिए, ये नेक्स्ट समझ में आएगा नहीं है? तो वही अभी फॉर्मूलाज, हाइट एंड पोजीशन ऑफ द मिरर टू व्यू द फुल हाइट्स। तो यहाँ पे आपको किसी को फुल हाइट देखना है, तो मिनिमम क्या है? जब मिरर का हाइट साइज क्या होना चाहिए? उसका हाफ।
यहाँ पे कंसिडर करो कि यहाँ पे समझो एक पर्सन की क्या है, तुम्हारी यहाँ पे ऑब्जर्वर है, आँख है ना, यहाँ पे दिखा है उसकी आँख है। तो यहाँ से वो देख रहा है, सपोज यहाँ पे इमेज देख रहा है, तो क्या दिखेगा, यहाँ से उसके टो दिखेगी उसको, यहाँ पर है ना, ये यहाँ पे उसके टो दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट के, ये पर्सन के, है ना, तो टो दिख रही है उसकी, यहाँ पे इमेज आ गई, ये एंगल क्या है उसका सेम है, बराबर। यहाँ से ऊपर देख रहा है उसके सर पे, ये भी एंगल सेम हो गया उसका, है ना। तो यहाँ पे उसका इसकी जो हाइट है, तो इसकी हाफ हाइट में पूरा उसका इमेज कवर हो गया। इसी तरह से यहाँ पे उसमें इमेज बताया, देखो ये पर्सन है, यहाँ से आंखों से ऑब्जर्व कर रहा है, हो ये एंगल क्या है उसका सेम है। उसी तरह से उसको ऑब्जर्व कर रहा है नीचे टो पे, तो ये भी एंगल क्या हो उसका सेम है। तो जितना ये समझो 6 फीट है, तो यहाँ पे कितना फीट, 3 फीट का मिरर लग रहा है। और इररिलेवेंट ऑफ पोजीशन, ये कहीं पे भी लेके जाओ, नजदीक लाओ दूर लाओ, पोजीशन से कोई मायने नहीं रखेगा, खाली ये इतना क्या रखना है आपको, हाइट एंड द पोजीशन, पोजीशन इज इररिलेवेंट, नो पोजीशन कहीं पे भी रहने दो, पोजीशन इज डजंट मैटर। टू व्यू द फुल हाइट, टू व्यू द फुल हाइट कितना लगेगा आपको, हाफ ऑफ हाफ ऑफ हाफ मिरर इज रिक्वायर्ड, हाफ ऑफ हाइट, है ना। तो वो मिरर की हाइट कितना होना चाहिए, मिरर की हाइट कितना होना चाहिए तुम्हारा, हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की हाफ हाइट है, तो आपको इमेज इसमें पूरी दिखेगी, इररिलेवेंट ऑफ द पोजीशन, पोजीशन कहीं पे भी होने दो, उसको आपको पूरी हाइट दिखेगी। उस पर कुछ एग्जांपल देखेंगे अपन यहाँ पर, ये भी और एक वही रिलेशन है। रोटेशन, व्हेन द प्लेन ऑफ रोटेशन थ्रोन एन एंगल थीटा, अभी यहाँ पे क्या होता है, तुम्हारा पहले एंगल था, तो यहाँ पे एंगल थीटा इंक्लाइन हुआ, तो द टर्न्स थ्रोन एन एंगल ऑफ 2 थीटा, द साइज ऑफ इमेज रिमेन्स द अनअफेक्टेड, साइज ऑफ इमेज कोई चेंज नहीं होगा, इमेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके डेविएशन में क्या है, द रिफ्लेक्शन कितना 2 टाइम्स उसका बढ़ेगा। यहाँ पे थीटा हुआ, तो यहाँ पे कितना देखो, यहाँ पे पहले थीटा था, तो ये कितना बन गया तुम्हारा, डबल बन गया। ऑफ द पोजीशन चेंजेस याद रखना है आपको। समझ में आया क्या, बताओ कैसा है ये, देखिए सिंपल है। यहाँ पे मिरर था, ये प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है ना, फिगर में दिखेगा आपको। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये क्या है तुम्हारा, सपोज ये आर, ये आई समझो। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको एंगल को मैं चेंज कर रहा हूँ, ये एंगल मिरर को झुका देता हूँ, तो क्या हो गया इसका, ये झुकने के बाद में नॉर्मल भी क्या हो गया, इसकी चेंज हो गई, नॉर्मल भी क्या है, ये थीटा से आएगा, तो अभी एंगल वही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया है अभी, तो रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, देखो अभी क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, आई प्लस थीटा, है ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा तुम्हारा, रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, आई प्लस थीटा। तो डिफरेंस क्या होगा तुम्हारा, ये आई प्लस थीटा माइनस थीटा, आई कैंसिल हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी सेम वही पॉइंट्स बताए यहाँ पे। रोटेशन ऑफ द प्लेन मिरर डिपेंड्स अपॉन द सेम, द प्लेन मिरर्स इमेज रोटेटेड थ्रू एन एंगल फाई, द नॉर्मल रोटेशन इज थ्रू द एंगल फाई, जो नॉर्मली जो है नॉर्मल का एंगल और वो एंगल सेम हुआ। तो जब तुम्हारा जो प्लेन मिरर का एंगल चेंज होता है, ये थीटा है, तो नॉर्मल का भी एंगल कितना होगा चाहिए तुम्हारा, थीटा, नॉर्मल का एंगल सेम है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस बाय थीटा प्लस फाई, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, है ना, तो ये एंगल इंसिडेंस प्लस ये एंगल बढ़ गया, बराबर है, तो ये एंगल तुम्हारा इंसिडेंस प्लस 5 बन गया। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट आल्सो 5 प्लस 5, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ गया तुम्हारा, है ना। द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रिफ्लेक्शंस, पहले का रिफ्लेक्शंस और फाइनल रिफ्लेक्शंस में क्या डबल हो गया, द फाइनल the difference between the final reflections rays and the initial reflection rays 2 times of the phi. The refracted rays does not rotate नहीं हो रही, वही डायरेक्शन एंगल चेंज हो रहा है, the incidence rays directed is not change, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, खाली रिफ्लेक्टेड में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस पे सॉल्व कर सकते हैं आप। When a plane mirror is rotated through an angle theta, the refracted rays turns angle 2 theta, then size of the image is, size पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, irrelevant, same, the remains the, very good। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये देखिए, वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ द प्लेन मिरर, वेलोसिटी क्या होगी, अभी क्या है, हाँ इक्वल, बट डायरेक्शन क्या है उसका, अपोजिट है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट तुम्हारे यहाँ पर नजदीक जा रहा है, सपोज इसकी वेलोसिटी सपोज v होगी, इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी तुम्हारी, सॉरी इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी v, बट डायरेक्शंस आर अपोजिट, है ना। अभी वेलोसिटी फ्रॉम द इमेज, ये क्या, ऑब्जेक्ट टू मिरर, है ना, और इमेज टू मिरर, बोथ आर सेम,
v, but the velocity of that object to image क्या हो जाएगा, is double, है ना. अभी जैसे कि समझिए ये जा रहा है, ये v से जा रहा है और ये भी क्या जा रहा है, v से जा रहा है, तो दोनों दूर कितना हो गए, 2v से ना. तो इफ यू आर कंपेयरिंग विद द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, it will be the double, and object and mirror and image and mirror it will be the same. समझ में आ गया. हाँ, ऑब्जेक्ट और इमेज की डबल होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगा, एंड ऑब्जेक्ट एंड मिरर एंड इमेज एंड मिरर विल बी द सेम, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन अलग होगा. समझ में आ गया. अभी क्वेश्चंस देखिए, फिर वही पॉइंट्स बताए यहाँ पे. velocity of the image of the plane mirrors depends upon the directions of the objects, है ना. डायरेक्शन पे एक राइट साइड पे, दूसरा लेफ्ट साइड पे. the parallel to the mirror the image velocity is the same as that of the object. इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, सेम, बट डायरेक्शन उसके क्या होगा, अपोजिट होगी. the perpendicular to the mirrors, parallel to the mirror के बारे में, अब मिरर क्या परपेंडिकुलर है. the image velocity is the same as that of the objects, but the relative speed of the images is double the objects. क्या है, जो उसकी स्पीड क्या होगी तुम्हारी, डबल हो जाएगी, है ना. कब, द परपेंडिकुलर होगा जब. द इमेज वेलोसिटी इज द सेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, बट द रिलेवेंट स्पीड ऑफ द इमेज इज डबल टू द ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. टुवर्ड्स द मिरर द इमेजेस वेलोसिटी इज डबल द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी. मिरर के बारे में देख रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट और मिरर के बारे में, तो उसका वो क्या हो जाएगा, डबल. देखिए अभी इसके बाद में कुछ क्वेश्चन है. एन ऑब्जर्वर move towards the plane mirror with a velocity 2 meter per second. Observer है, and with the velocity of the image appears to move towards the mirror. देखिए अभी क्या आएगा, सेम अपोजिट डायरेक्शन. वेरी गुड. 2 मीटर अपोजिट डायरेक्शंस. यहाँ पर देखो, यहाँ पर मल्टीपल इमेज का फॉर्मूला याद रखना है आपको. थीटा इक्वल टू 360, सॉरी, नंबर ऑफ इमेजेस डिवाइडिंग बाय थीटा माइनस 1. ये फॉर्मूला याद करना है आपको. यहाँ से आप इमेजेस निकालोगे. यहाँ पे सेम फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, वही. तो ये थीटा माइनस 360, ये फॉर द इवन नंबर ऑफ इमेज, यानी सिमेट्रिक आएगा. और सिमेट्रिक थीटा माइनस, और असिमेट्रिक यानी क्या है, 360 माइनस थीटा, माइनस 1 नहीं आएगा. असिमेट्रिक यानी क्या है, जब तुम्हारा, आप देखते हो कई शोरूम में वगैरह जाते होंगे, तो एक ऑब्जेक्ट में क्या है, तुम्हारा एक बीच में तुम्हारी इमेज दिखती है, बीच में इमेज दिखती है तो इतने दिखेंगे, और बीच में नहीं दिखती है, साइड में दिखते हैं, तो असिमेट्रिक यानी 360 माइनस थीटा, उतना ही करना है आपको. तो जब कि तुम्हारा एंगल आउट को बोले तो समझाने में, एंगल कैसा आउट होता है, तो इवन यानी क्या है, जब तुम इमेज, अभी दो एंगल के बीच में आप यहाँ पे खड़े होते हो, तो यहाँ पे जब इमेज दिखती है सपोज, उसको बोलते सिमेट्रिक इमेज. एक इमेज अपनी होती है कि वहाँ पे क्या है, जैसे कि इन्वर्टेड, अपनी इमेज इन्वर्टेड होती है ना, तो लैटरल इन्वर्टेड होती है, बस आप वो जो एंगल 90 है तो लैटरल इन्वर्टेड होगी क्या इमेज वहाँ पर, नहीं, वहाँ पे एज इट इज इमेज दिखी है आपकी. आप देखो एक आधे शोरूम में है ना गए तो वहाँ पे उसके सिमेट्रिक इमेज बोलते हैं. असिमेट्रिक यानी यहाँ पे इमेज आएगी और यहाँ पे इमेज आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी बीच में, हो गया असिमेट्रिक. कौन सा, तो वही बता रहा है. इवन यानी क्या, तुम्हारे नंबर्स उसके सेम आएंगे. अभी इमेज यहाँ पे इमेज आई तो इमेज सेम आएंगे क्या, इमेज नहीं आएंगे. यहाँ पे 1 2 3 क्या हो गए, और यहाँ पे नहीं आए तो कितने इमेज आ गए, 1 2, इस ये आएंगे इवन कंडीशन. नहीं मिरर्स नहीं है, मिरर्स दो ही है, दो ही मिरर्स में कमन कर रहे हैं, इमेजेस आ रहे हो. एंगल अभी क्या है, ये जब डिवाइड होता है कभी नहीं होता है, जब उसके कंडीशंस चेंज होते हैं. देखिए अभी, हाँ नहीं एंगल से कोई लेना देना नहीं है, इमेजेस बता रहे हो. देखिए अभी यहाँ पे कुछ एंगल के बीच में बताया, ये इमेज दो मिरर है, उसके बीच में एंगल है. सपोज ये एंगल अल्फा है, बीटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस थीटा, यहाँ पे बीटा प्लस थीटा, दो बीच के एंगल होगा, तो है ना. सेम एग्जांपल बताया इसमें. अभी इसमें प्लस ये एंगल फिर से ऐड करना है, अल्फा प्लस थीटा 2 थीटा, बीटा प्लस थीटा बीटा प्लस 2 थीटा. सेम एग्जांपल यहाँ पे नीचे बताया आपको. यहाँ पे जैसे कि सपोज ये मिरर 1 मिरर 2 में एंगल दिया है आपको 50 का, कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे फर्स्ट एंगल दिया मिरर में 20 डिग्री है और 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 प्लस 50 70, 30 प्लस 50 80, यहाँ पे 80 प्लस 50 130, 70 प्लस 50
120, 120 प्लस 50, 130 प्लस 50, 180। इस तरह से इमेज आएगी। फर्स्ट इमेज आएगी तुम्हारे जहां मिरर में दिया है वो एंगल पे। सेकंड इमेज निकालना है तो आपको एंगल क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे को प्लस करना पड़ेगा, है ना। सेकंड इमेज में यहाँ पे सेकंड इमेज है 30, तो 50 प्लस 30 सेकंड इमेज आएगी। तो फिर थर्ड इमेज निकालना है 30 प्लस 50। इस तरह से आपको इमेजेस निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करो। If the two mirrors are placed parallel to each other, what will be the angle between the incident ray and reflected ray after multiple reflections? क्या आएगा, दो मिरर है, पैरेलल है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा, तो यहाँ पे पैरेलल है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे इंसिडेंस क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, यहाँ पे इंसिडेंस, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, है ना, नहीं जीरो, है ना। देखो तो क्या बोल रहा हूँ, द पैरेलल टीचर, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे भी वही होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी, डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच का, जीरो, करेक्ट है। डिफरेंस आएगा क्या उसमें, नहीं आएगा ना। द नेक्स्ट वन देखिए, पढ़ो। इफ द मिरर्स आर इंक्लाइन एट एन एक्यूट एंगल, एक्यूट जनरल क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस दैट कैन बी ऑकर्स बिटवीन देम बिफोर द लाइट एक्सेप्ट। लाइट निकलने से ज्यादा, इसमें जो सबसे नंबर ज्यादा है वो आप इतनी ज्यादा नहीं मिल जाएगी, 5। ऐसा कुछ बोला नहीं ना उसने, एक्यूट एंगल बोला, कितना एंगल मेंशन करा क्या, मैक्सिमम इमेज होना है। इफ द नंबर्स ऑफ इंक्लाइंस एट एन एंगल, एक्यूट एंगल, जितना एंगल छोटा उतने इमेज, अभी मेंशन नहीं किया, जनरल क्वेश्चन है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस दैट कैन ऑकर बिटवीन देम बिफोर द लाइट्स एक्सेप्ट। लाइट निकलने के पहले कितने बार रिफ्लेक्शन, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है इसमें, 5, है ना। दो मिरर के बीच में एक्यूट एंगल रख रहे हैं अपन, है ना, थीटा, तो मेंशन नहीं करा उसने, जितना एंगल छोटा उतने और ज्यादा से ज्यादा आएंगे। यहाँ पे मैं 30 लिखता हूँ, 45 लिखा हूँ, और इसमें एग्जाम्पल है जनरल, जितने मैक्सिमम है इसमें उतने इमेज आएगी, है ना। कौन सा, थ्री 350, हाँ यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं उसने। हाँ, अभी आप एक्यूट एंगल पे तो जीरो लेते तो क्या इन्फिनिट आएगा, पर ये आपने को इसमें जनरल कंडीशन दिया, इसमें जो ऑप्शन है वो चुनना है अपने को। मैक्सिमम 350, 359 में कम हो जाएंगे बेटा, 359 में कम हो जाएंगे। एक्यूट एंगल 359, एक्यूट एंगल क्या है, लेजर 90, है ना। लेजर 90 बोले तो अपन क्या करें, 10 ले रहे सपोज, 1 डिग्री मैक्सिमम आएगा वहां पर, है ना। पर वो आपने को इसी ऑप्शन में दिखाना है अपने को खाली, तो इसमें ये आ गया, एक्यूट लेना है, समझ में आ गया। इसमें क्या आएगा आंसर, देखिए नेक्स्ट वन, पढ़िए क्वेश्चन। Two mirrors are perpendicular to each other. What is the relationship between incident angle and one mirrors and the reflected angles of the other? क्या होगा, देखिए, टू मिरर्स आर परपेंडिकुलर टू अदर्स, निकालो फिगर, दो मिरर हैं, एक दूसरे क्या है तुम्हारे, एंगल है। तो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट एंगल एंड ऑफ वन मिरर। ये वन मिरर का इंसिडेंट एंगल ले लेंगे अपन, यहाँ पे इंसिडेंट रहे हैं, तो इसका नॉर्मल क्या हो गया तुम्हारा, ये नॉर्मल हो गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा समझो, ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे ये पे जाएगा यहाँ पर, बराबर। तो यहाँ पे इसका नॉर्मल क्या होगा, सपोज ये है, तो यहाँ पे हो गया एंगल रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है। तो ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है। द एंगल देन अदर, तो क्या होगा, दोनों की एडिशन क्या होती है हमेशा, ये एक्स और वाई की एडिशन क्या होगी तुम्हारी, द कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, एंगल इज 90 डिग्री। तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई कितना होगा हमेशा, देखो। तो क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है तुम्हारा, यहाँ पे एक्स है ना, तो ये भी क्या हो गया एक्स। तो यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या होगा तुम्हारा एक्स, बराबर, ये भी क्या होगा तुम्हारा एक्स। तो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए तुम्हारे, पैरेलल हो गए, बराबर है। तो ये दो लाइन पैरेलल, तो दोनों का इंटर एंगल, सम ऑफ इंटर एंगल कितनी होती है तुम्हारी 180। तो खाली पूछा क्या है अपने को उसने ने, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का रिलेशन पूछा है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रिलेशन पूछा है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस खाली एक्स हो गया, 2x की बात नहीं कर रहे अपन, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया ये। तो कितना हो गया तुम्हारा x प्लस एक्स, कितना हो गया 2x यानी तुम्हारी एंगल पूरा, बराबर है। तो कितना हो गया तुम्हारा 90 का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट, हाँ इक्वल कहां पे, तो एंगल ऑफ
द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड एंगल्स टू द अदर, नहीं अदर से निकाला है ना, तो ये एक्स है, तो अभी अभी मैंने अभी स्ट्रेट निकाला है, तो ये ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा, ये ऐसे जाएगा, इक्वल भी आ सकता है, पर एक्चुअली एग्जैक्ट क्या है तुम्हारा, देखो इक्वल आता है क्या, एक बार चेक करके देखो, मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट्री सही है। हाँ, एक ऑब्जर्वेशन एक दो करके देखो। लेट मी कंसीडर दिस इज द 30 लेके देखेंगे, है ना, 30 एंगल लेके देखेंगे, कितना आ रहा है तुम्हारा, 30 ले तो ये 30, तो यहाँ पे इसका नॉर्मल यहाँ पर, तो इसके लिए नॉर्मल ये एंगल कितना हो रहा है तुम्हारा, ये 30, तो ये 30 सपोज ना, 30 नहीं है ना, एक मिनट, ये 90 डिग्री है, सॉरी ये 90, तो ये कितना आएगा तुम्हारा, ये 60 आएगा क्या, ये 60 आएगा, तो ये एंगल तुम्हारा हो गया 30, तो ये 30 है, तो फिर ये एंगल कितना होगा तुम्हारा, ये 60 होगा, है ना, ये 60, तो फिर ये कितना आएगा तुम्हारा, ये भी 60, तो ये 30, तो यहाँ पे देखो फिर क्या होगा तुम्हारे दोनों का एडिशन, इंसिडेंट 30, तो ये कितना है, रिफ्लेक्शन 60, इक्वल आ रहे क्या, नहीं आ रहे, तो इसलिए ये आंसर सुटेबल है ना, एक 45 की कंडीशन में दोनों इक्वल आएंगे, लेकिन अलग कंडीशन ले तो कॉम्प्लीमेंट रहेगा, समझ में आना है कैसा है। उसके बाद में देखिए ये सेम क्वेश्चन है, अरे हाँ अलग है, in a setup the four mirrors form the square, okay, if the incident angles of one of the mirror is 45, what will be the total number of reflections before the light returns to the original direction, समझ में आया क्वेश्चन, स्क्वायर है, स्क्वायर ने क्या है, सभी के साइड्स सेम है बराबर, और एंगल भी कितना है 90 डिग्री है ना, इसमें क्या होगा तुम्हारा, एक मिरर दे, इफ द इंसिडेंट रेस ऑफ वन ऑफ द मिरर इज 45, तो यहाँ पे मिरर का इंसिडेंट रे क्या होगा तुम्हारा 45, यहाँ 45, तो यहाँ पे सीधा 45 पे जाएगा, यहाँ पे भी 45 पे जाएगा, यहाँ पे भी 45 पे आएगा, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, फिर से 4 टाइप्स रिफ्लेक्शन हो गया, है ना, तो ये आंसर क्या गया इसका, समझ में आ रहा है ना। तो उसके बाद में देखिए क्या, हाँ तो पहले यहाँ पे था, तो फिर यहाँ पे से यहाँ एक दो बार, 3 बार, 4 बार, और फिर 4 बार, है ना, वहीं पे आएगा। उसके बाद में देखिए क्या होगा, the two plane mirrors are inclined at an angle 60 degree, find the number of images from the objects placed between these two mirrors, कौन निकालेगा, पाएगा क्या, करेक्ट है ना, थीटा इक्वल्स टू सॉरी 360 बाय 60 माइनस 1 दैट इज 5, कौन सा, हाँ ठीक है। हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म बाय टू पैरेलल मिरर्स, पैरेलल मिरर में कितने आएंगे, इनफाइनाइट, बिकॉज एंगल इज थीटा इज 0, 360 minus 0 minus 1 infinity minus 1 equals to again infinite. कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर, तो देखिए अपन ने कॉम्बिनेशन किस तरह से हो रहे हैं, प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशन, एंगल कोई भी एंगल ले सकते हैं अपन, इस तरह से एंगल जो चेंज करे तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने फॉर्म हो रहे निकाले अपन ने, और द पैरेलल द एंगल इज 0, व्हाट एवर द कंडीशंस, वो जो निकाले एक ही फॉर्मूला है इसमें, थीटा इक्वल्स टू सॉरी इमेजेस इक्वल्स टू थीटा माइनस 1, ये इमेजेस से निकालना है आपको। अब ये देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, देखो figure shows the two plane mirrors parallel to each others and the objects O placed between them as shown, then the distance of the first 3 images from the mirror M2, M2 से निकालना है, तो ये ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पर, है ना, तो इसकी इमेज कहाँ आएंगी, फर्स्ट इमेज कहाँ आएंगी इसकी, वो साइड में बराबर है, इसकी इमेज कहाँ पे आएंगी, यहाँ पर आएगी, ये 5 सेंटीमीटर पे, करेक्ट है, और ये 15 का है, तो यहाँ पे इमेज कितनी आएगी इसकी, यहाँ से 10 और यहाँ से 10, यहाँ पे 10 पे आएगी, बराबर है, ये फर्स्ट इमेज आ गई, ये आ गई सेकंड, है ना, फिर बाद में इमेज की इमेज आएंगी, है ना, तो फिर से अब ये इमेज यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज कहाँ पे रहेगी तुम्हारी, ये इसकी इमेज इसमें दिखेगी, बराबर है, ये कितना हो गया 15 और 20, और
ये 20 करेक्ट है, समझ में आ रहा है क्या? 20। चलो अभी इसका भी निकालेंगे क्या, जरूरत नहीं, ये 10 से होगा। चलो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चलो कोई बात नहीं, फिर भी ये 10 है यहाँ से, तो ये मिरर से निकालना है आपको। ये कितना हो गया, 10, 15, और इधर कितना हो गया, 25, है ना? ये मिरर से निकाल रहे हैं ना, कितना हो गया, 35 ना, यहाँ पे आएगी 35 पे, समझ में आ रहा है? हाँ? तो अभी क्या निकालना है अपने को, the figure shows the plane mirrors of the two parallel each others at the point O, placed between the mirrors as shown in figure. Then the distance from the first image from mirror M2, M2 से निकालना है। मिरर M2 का है, ये है अपना। तो पहला कितना है, इमेज कितने पे है, 5 पे, सभी 5 है। चलो अब यहाँ पे निकालेंगे M2। दूसरा इमेज कहाँ पे आया अपना, इसमें से यहाँ पर, ये 10 + 10 + 5, M2 से कितना दूर है तुम्हारा, ये 25, तो यहाँ पे 25 है, 5 है ना? अभी थर्ड इमेज कहाँ पे है, M2 से 35, बराबर है। अभी कभी कभी M1 M2 की जगह पे M1 भी पूछ सकते हैं। M1 क्या आएगा बोलो, सेम अभी समझो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इससे M1 के लिए आता है, तो M1 के लिए कितना, ये मिरर है, तो 10, वेरी गुड, 10, और इस तरह से निकालेंगे, बराबर। 50 आ गया क्या, 40 आ रहा है क्या, अच्छा समझ में आ गया ना? तो M2 से डिस्टेंस निकालेंगे। अब ये देखिए, निकालो, टू प्लेन मिरर्स M1 and M2s, each have the length of 1 मीटर, ओके, दोनों इसकी पूरी लेंथ क्या है, 1 मीटर है, इट इज 100 सेंटीमीटर। A ray of light incidents on the one of the end of the mirrors at the angle of 45, okay. How many reflections of the ray have been before going out from the others, okay. एंगल 45 दिया, बराबर, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, 45, ये एंगल 45, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा आपका 45, तो ये डिस्टेंस कितना दिया आपका 1 सेंटीमीटर, आइसोक्लेस ट्रायंगल बन गया नहीं, ये 45, ये भी कितना हो गया तुम्हारा आइसोक्लेस ट्रायंगल 1, ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, बराबर है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन में ये आ गया, सेकंड रिफ्लेक्शन में ये 1, ये 1, ये 2 आएगा, इस तरह से 3, है ना? तो जितने 100 सेंटीमीटर, तो कितने रिफ्लेक्शन आएंगे तुम्हारे 100, समझ में आ रहा है? हाँ, आइसोक्लेस ट्रायंगल बन गया हो, इक्वेटर आइसोक्लेस ट्रायंगल, तो यहाँ पे 45, तो ये 45, ये एंगल भी, ये भी डिस्टेंस बने, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा आपका 1, तो उस तरह से एक हो गया फर्स्ट रिफ्लेक्शन में 1 सेंटीमीटर जा रहा है, सेकंड में तो 100 में 100, इज इट क्लियर? तो इतने क्वेश्चन थे क्या, चलो समरी में लिखेंगे। फॉर्मूला टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इमेजेस फ्रॉम बाय द टू प्लेन मिरर्स, टू मिरर्स एट डिफरेंट एंगल्स, कौन सा फॉर्मूला है बोलिए, शायद फॉर्मूला याद होगा आपको, करेक्ट है, तो n इक्वल्स टू 360 माइनस थीटा माइनस 1, द एंगल ऑफ डिविजन एंड रोटेशन ऑफ द मिरर्स, और एंगल ऑफ डिविजन क्या है तुम्हारा, हाँ 180 माइनस 2i और 2r, है ना? तो रोटेशन ऑफ द मिरर्स, रोटेशन ऑफ मिरर में क्या है तुम्हारा, द नॉर्मल एंगल एंड द एंगल ऑफ रोटेशन इज द सेम, है ना? जो एंगल ऑफ रोटेशन पे था, तो ये मिरर का ये थीटा है, तो तुम्हारा ये भी थीटा होगा, है ना, नॉर्मल का। और रिफ्लेक्शन का क्या होगा तुम्हारा, रिफ्लेक्शन क्या होगा तुम्हारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा तुम्हारा 2 थीटा पे, है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा तुम्हारा थीटा प्लस फाइ से, और यहाँ पे ये भी बढ़ेगा थीटा प्लस फाइ से, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। होमवर्क के लिए बताया आपको, चलो सॉल्व करो, आपको बताना है ये। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द, निकालो पढ़ो, if the object moves parallel to the plane mirrors, what is the directions of the velocity of its image? करेक्ट है, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, है ना? यहाँ पे है सपोज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे से मिरर है, तो वेलोसिटी इधर आ रही है, तो तुम्हारे इमेज की वेलोसिटी ये होगी, तो दूर जा रही है तो ये भी वेलोसिटी उसके डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। द नेक्स्ट वन,
When an object moves away from the plane mirror at a constant speed, at what velocity image changes? बोलिए. क्वेश्चन समझ में आया क्या? एन ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर. ऑब्जेक्ट क्या जा रहा है तुम्हारा, यहाँ पे मिरर है, यहाँ से ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, वेलोसिटी v से जा रहा है. फ्रॉम द मिरर एट कांस्टेंट स्पीड, ये वेलोसिटी सेम है, बदल रही नहीं है, v से जा रहा है. हाउ डज वेलोसिटी ऑफ द इमेज चेंज? इमेज में क्या जा रही, इमेज क्या जाएंगी तुम्हारी, वही वेलोसिटी से जाएंगी, चेंज होगी क्या? पर डायरेक्शन क्या उसका होगा, अपोजिट. तो अपन उसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में मेंशन नहीं करना है. तो डिक्रीज भी नहीं होगी, इंक्रीज भी नहीं होगी, जीरो भी नहीं होगी, तो ये क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, बस ओनली अपोजिट डायरेक्शन. तो देखिए नेक्स्ट वाला पढ़िए. In what way does the velocity of the image in a plane mirror is related to the velocity of the objects in a object is moving perpendicular to the mirror? बोलिए क्या आएगा? Same angle and opposite directions. Very good. कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे थे इसमें हो ही नहीं सकते, ऐसे दीजिए ऑप्शंस. तो आप लोग सीधा समझ में आता है, जो नहीं होता है उसको छोड़ देना है, जो आता है वही क्लिक कर देना है. बोलिए. If the object moves an angle 45 degrees to the plane mirrors, what is the angle of reflections of its image? 45. The object moves angle 45 degree to the plane mirror, है ना, क्योंकि ग्लासिंग एंगल किसका है, 45 है. 45 तो क्या होगा तुम्हारा, ये एंगल तुम्हारा आ जाए 45, तो ये भी कितना होगा, 90 माइनस 45, इट विल बी द 45 ना, 90 माइनस 45. निकालो अभी ये. what an object moves an angle 30 degree the plane mirrors, how does the angle of reflections of its image compare? 60 आएगा क्या, कितना 30 डिग्री आएगा, ऐसे क्या? हाँ देखिए क्या बोल रहा हूँ, when the object moves towards when the object moves towards an angle 30 degree to the plane mirrors, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये एंगल कितना है तुम्हारा 30 है, तो ये एंगल कितना होगा तुम्हारा 60 है. हाउ डज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ इट्स इमेज कंपेयर? तो रिफ्लेक्शन का क्या है तुम्हारा, क्या 60 लेस देन 30 डिग्री तो नहीं है, रिफ्लेक्शन बताया ना, ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, तो रिफ्लेक्शन भी कितना आ गया तुम्हारा 60. does the angle of reflections and its image compare? Less than 30 degree, equal to 30 degree, greater than 30 degree, are always 90 degree. Greater than 30 degree, नहीं दिया, अलग ही दिया. Moves an angle 30 degree with the plane mirrors, how does the angle कंपेयर करना है, कंपेयर है दोनों में डिफरेंस निकालना है, छोटा बड़ा कितने से, ये 60 है, 60 में से 30 गए 30. कंपेयर करो बेटा, देखो क्या बोल रहा हूँ, द एंगल इज, देखो व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स एन एंगल इज 30 डिग्री टू द प्लेन मिरर, हाउ डज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस ऑफ इट्स इमेज कंपेयर? तो रिफ्लेक्शन कितना है 6 डिग्री, और इसका क्या कंपेयर में कितना ज्यादा है तुम्हारा, ज्यादा कितना है, 60 में से 30 गया, 30 एंड इक्वल टू 30, 60 माइनस, करेक्ट है. कंपेयर करना है दोनों में से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस और एंगल ऑफ ग्लांसिंग में कौन सा कितना ज्यादा है. देखिए क्वेश्चन, ये सॉल्व करो. A candle C sides between the two parallel mirrors, a distance of 0.2 from the mirror 1. Here the D is the distance between the mirrors. Multiple images of the candle appears in both the mirrors. How far behind the mirror 1 are nearest to the images of the candles in the mirrors? निकालिए, कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, सोचो कैसे निकालोगे, सोचना पड़ रहा है. क्वेश्चन समझ में आया आपको? बोलिए क्या कर रहे हैं हम. और कैंडल सी साइड्स बिटवीन द टू, हाँ बोलिए, बी वाला मेरे ख्याल से नहीं,
लकी ड्रॉ है क्या? नहीं, देखिए सॉल्व सॉल्व करो ना आप। देखिए मैं बताओ क्या स्टेप्स कैसा करना है। देखिए आपने सेम एग्जांपल किया इसलिए मैं नहीं बता रहा था। देखो क्या हो रहा है, कैंडल सी साइड्स बिटवीन द टू पैरेलल मिरर्स ऑफ डिस्टेंस 0.2 फ्रॉम द मिरर वन। तो मिरर वन ये दिया, तो आपकी कैंडल क्या है तुम्हारी यहाँ पे लगी हुई है, बराबर। हाँ, तो ये डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 0.2 डिग्री है। तो ये 0.2 है, तो यह इसकी इमेज कहाँ पे आएंगी 0.2D, करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन 0.2D सभी में है, पहला देखने का नहीं फिर अपने को। तो यहाँ पे बचा कितना डिस्टेंस है 0.8, ये डिस्टेंस कितना है, इसकी इमेज कहाँ पे आ रही 0.8D, बराबर है। तो मिरर वन से कितना दूर पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहा, मिरर वन से निकालना है। मिरर वन से कितना दूर है ये यहां से देखिए 1 और 1 पर 0.8 कितना हो गया 1.8, क्या हो ना, मिरर के बिहाइंड आएगा ना ये, क्या ये देखो यहाँ पे कैंडल सी यहाँ पे था, मिरर वन के बारे में पूछ रहा हूँ उन्हें, क्या पूछ रहा है नियरेस्ट टू इमेजेस। पहली इमेज सबसे पहली कौन सी है मिरर वन के लिए 0.2D पे आई, तो इसकी ये 0.8D पे है ये, इसमें मिरर ये इमेज में, इसकी इमेज कहाँ दिखेगी यहाँ पे दिखेगी। तो मिरर वन से कितनी दूर है ये, देखो ऑब्जेक्ट समझ में आपको, यहाँ पे ये मिरर है ना। मिरर वन के पास ये कैंडल है तुम्हारी, इसकी इमेज कहाँ पे आ रही, ये कैंडल यहाँ पे, इसकी इमेज कितना, ये 0.2 है, इसकी इमेज कहाँ पर आई, और इमेज हमेशा मिरर की बिहाइंड ही आती है, वर्चुअल इमेज आती है हमेशा। तो ये कितना है 0.2 डिग्री पे आई, ये समझ में आ गया क्या। हाँ, तो ये मिरर वन से डिस्टेंस कितना हो गया ये 0 पॉइंट, ये पॉइंट काम हो गया अपना। अभी अभी सेकंड इमेज कहाँ है निकालना है, सेकंड इमेज के लिए कैंडल यहाँ पर है, तो ये मिरर इसमें, ये मिरर में दिख रही है सेकंड में। तो ये कितना, ये डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, पूरा मिल के 1 मीटर है, तो 1 मीटर में से कितना होगा 0.8, बराबर है। तो इसकी इमेज कितनी आई, ये आईने के इधर, तो ये आईने के इधर आई, तो मिरर वन से कितनी दूर है ये 1 और ये 0.8, बराबर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो 1 और 0.8 तो कितना आ गया है 1 प्लस 0.8 और ये तुम्हारा 0.2, समझ में आ गया ना। इतना ही था आज के टॉपिक में। कुछ डाउट्स है तो आज के टॉपिक में पूछिए। कौन सा डिस्टेंस वाला, सेम वो 3 इमेज वाला, मिरर 2 वाला, बताता हूँ देखिए। ये क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, देखिए सेम देखो। तो इसमें क्या बोल रहा था, figures of the two plane mirrors of parallel to each other are the object O and place between them as shown in figure the distance of the first 3 images। अभी 3 निकालना है, यहाँ पे कितने निकालना है, अभी लास्ट में से 2 ही पूछे, अभी यहाँ पे निकालना था अपने को 3। देन द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट 3 इमेजेस फ्रॉम द मिरर 2, M2 से निकालना है। पहले अपन यहाँ पे लास्ट में किससे निकाले, अपन M1 से निकाले, बराबर है। तो यहाँ पे देखो, तो ये मिरर 1 है, मिरर मिरर 2, दोनों के बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, मिरर यहाँ पे दिया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे दिया 5 है ना, मिरर 2 के पास दिया 5 सेंटीमीटर। तो इसकी इमेज कहाँ पे रहेंगी, यहाँ पर आएंगी, है ना। तो मिरर 2 से कितना दूर हो गया ये 5, पहला ऑप्शन करेक्ट है, सभी तरफ 5 है ना, पहला ऑप्शन सभी तरफ 5 है। चलो दूसरा ऑप्शन देखिए अभी, तो ये 5 है, तो ये पूरा मिलके कितना है तुम्हारा 15 दिया, ये कितना बाकी है, फिर ये कितना है 10। तो इसकी इमेज कहाँ पे रहेंगी, ये साइड में आएंगी, कितनी दूरी पे आएंगी 10। तो ये मिरर M2 से कितना दूर हो गया हो, ये 10 और 10 20 और ये 5 25। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 25 वाला कौन सा है तुम्हारा, ये है ना। फिर तीसरा भी निकालना है सपोज आपको, तो तीसरा भी निकाल सकते, दूसरा समझ में आ गया। हाँ, फिर तीसरा निकालो। फिर अभी ये इमेज की इमेज आएंगी अभी, तो ये इमेज कहाँ पे तुम्हारी, यहाँ पर है 5 पे। तो ये है अभी इसमें M1 में दिख रहा है, सॉरी चलो M1 में कितना हो गया ये 20, तो यहाँ पे गई
ये हो गया तुम्हारा 20 में। तो अपने डिस्टेंस निकालना है, कितना कहाँ से निकालना है अपने को, M2 से निकालना है। ये 20 है और ये कितना हो गया, तो कितना हो गया तुम्हारा 30। समझ में आ गया? हाँ, और कोई डिफिकल्टी क्या, देखो पूछो। रोटेशन ऑफ मिरर बताओ। अच्छा, तो रोटेशन ऑफ मिरर बताता हूँ मैं आपको। देखो सिंपल, देखो तो ये क्या है, ये मिरर है सपोज, ये इसका नॉर्मल, ये मिरर 1 और ये नॉर्मल 1। तो नॉर्मल में एंगल हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। लेट वी कंसिडर दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और रिफ्लेक्शन को मैं आई लिखता हूँ, चलेगा? थोड़ा सा कन्फ्यूजन थोड़ा कम हो जाएगा, है ना? तो अब क्या करता हूँ मैं, देखो ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, मिरर थोड़ा सा अपना एंगल टिल्ट कर रहा है, तो ये मिरर का एंगल क्या हो गया, टिल्ट हो गया मिरर। ये मिरर है अपना। तो अभी इसकी ये नॉर्मल ये थी, इसको इंसिडेंट रे, ये क्या है तुम्हारी इंसिडेंट रे आ है ना, और ये क्या है तुम्हारा आर। पहले मिरर का लिखना था मैंने। तो ये इसकी नॉर्मल क्या हो गई तुम्हारी, शिफ्ट हो गई। कितना शिफ्ट हो गई, ये एंगल से, बराबर है ना, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो गया थीटा। इंसिडेंट रे बदल रहा क्या, नहीं। तो इंसिडेंट से ये एंगल कितना था तुम्हारा, आई था, तो ये एंगल कितना हो गया अभी, हाँ थीटा प्लस आई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया तुम्हारा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, थीटा प्लस आई, है ना। तो ये तुम्हारा यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे नॉर्मल ये है, तो यहाँ पे जाएगा, ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा प्लस आई। तो ये पहले की रिफ्लेक्शन थी और ये रिफ्लेक्शन थी। तो अभी ये एंगल निकालना है आपको, कौन सा, ये एंगल, ये एंगल निकालना है ना। डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन, ये पहली रिफ्लेक्शन रहे हैं R1 और ये R2। तो ये एंगल कैसा निकालोगे आप, ये पूरा एंगल माइनस ये एंगल, बराबर है ना। नहीं तो फिर ये एंगल में से ये एंगल माइनस कर दो, कैसे भी R माइनस कर दो, क्योंकि अपना पहला नॉर्मल क्या था तुम्हारा, ये नॉर्मल N2 है ना। तो ये एंगल ऑफ थीटा, ये एंगल ऑफ R, ये एंगल ऑफ R, तो ये अपने एंगल निकालना है। समझ में आ रहा है ज्योमेट्री? हाँ, तो अभी कैसे निकालोगे ये एंगल है, देखिए थीटा आई माइनस थीटा प्लस आई, है ना, दोनों के एडिशन। एक मिनट, सर मैं थोड़ा सा ड्राइंग में थोड़ा सा अच्छा निकालता, पूरा सा पहले से निकालता। पूरा लिखेंगे नाम, हाँ कौन सी लाइन है क्या, हाँ ये ना, हाँ हाँ, वही लेता, इसको रेजर से कट कर देता है ना पहले, ये लेता है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन ये लूँ क्या, नहीं है क्या स्ट्रेट, आ गई क्या, हाँ आ गई। टाइम ले रही क्या, चलो ये आए, अरे ये हम भी सीधा, चलो कोई बात नहीं। चलो ये मिरर M1, M1 R1 N1 I1, ये अपना I, ये I, है ना। तो अभी फिर से ये एंगल चेंज कलर कर देंगे, ये लेंगे, नहीं आ रही क्या, फिर से करोगे अंडू,
ये लोग है, करेक्ट है। हम्म, इसका एंगल सेम परपेंडिकुलर, वो टाइम ले रहा हूँ, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा। तो देखो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा तुम्हारा, आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा, नया आने वाला। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा आपका, तो ये होगा तुम्हारा R2 बराबर। तो क्या था ये एंगल तुम्हारा आई प्लस थीटा, और यहाँ से नॉर्मली ये भी क्या होगा तुम्हारा आई प्लस थीटा। तो अपन को निकालना है, ये एंगल निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द R2 एंड R1, है ना। तो यहाँ पे एक येलो वाला ये जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है बराबर, और ये भी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। हम्म, तो ग्लांसिंग ये एंगल देखो, ग्लांसिंग एंगल के साथ यहाँ से ये एंगल में ये एंगल निकालना है मुझे, इसको शेड ही कर देता हूँ, समझ में आने को आसान हो जाएगा। ये एंगल निकालना है मुझे, है ना। तो अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री है तुम्हारा येलो वाला, पहले का एंगल ऑफ आई प्लस थीटा, आई प्लस थीटा कौन सा है, ये पूरा है शायद, यहाँ से आया तक आई प्लस थीटा है, आई प्लस थीटा माइनस आई कौन सा है, ये है क्या, एक मिनट, आई प्लस थीटा पूरा एंगल है, ये एंगल पूरा आई प्लस थीटा है बराबर, माइनस ये एंगल करना है अपने को, इसमें से ये एंगल माइनस करेंगे, ये एंगल कितना आ रहा है, हाँ देखो ये एंगल कितना है अपना, आई है बराबर है, आई माइनस थीटा, ये कितना है, आई माइनस थीटा है, माइनस आई माइनस थीटा बराबर है क्या, ये कैसा है, इतना तुम्हारा है थीटा और ये तुम्हारा है आई, तो आई में से माइनस किया तो ये बना कितना, आई माइनस थीटा, दोनों को सेपरेट करो, आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा प्लस आई माइनस आई टू थीटा, समझ में आ गया। और फिगर निकालने में थोड़ा सा होता परेशानी, और कोई डाउट्स, हाँ इतना याद रखो, खाली तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे में क्या डिफरेंस टू थीटा का आ रहा, नॉर्मल में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, हाँ हाँ नॉर्मल में इधर थीटा है तो ये भी थीटा चलेगा, नॉर्मल में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या और तुम्हारा आई प्लस जो थीटा आ रहा है ना, तो रिफ्लेक्शन एंगल क्या हो तुम्हारा चेंज होने वाला, आई माइनस थीटा आ रहा है, रिफ्लेक्शन एंगल क्या है, आई माइनस थीटा। इज इट क्लियर नाउ, कोई डाउट नहीं ना, क्या कौन सा कंपेयर बोलिए, हाँ वो 60-30 का कंपेयर यानी क्या करना है तुम्हारे को, देखो तुम्हारा रिफ्लेक्शन 30 आया 60 आया, हाँ ग्लांसिंग ग्लांसिंग 30 दिया, ग्लांसिंग 30 दिया, RSO एंगल है ना ग्लांसिंग एंगल, आने वाला एंगल है ना ग्लांसिंग एंगल, क्लियर, थैंक यू।